اگلی شام جب وہ ہسپتال گئی تو اسے اخباروں سے زیادہ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ رات والا شخص کون تھا۔ ایسا ہوتا ہے، جرائم کی دنیا میں کسی مجرم کے خوف کا تاثر زیادہ ہوتا ہے اور بذات خود وہ شخص کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کوئی بات بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کی زبان پر چڑھتی ہے تو کہانیاں اور افسانے بن کر پھیل جاتے ہیں، جبکہ وہ ایسی افواہوں کا روپ دھارتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ گزرے 2 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ اس کی ماں کو جب بھی وہ زیور یاد آتا تو نیہا کو کوسنے دینے لگ جاتی۔ اس کے خیال میں ان کی زندگی بدل جاتی اور شاید یہاں سے بھی نکل جاتے۔ نیہا کی وہی زندگی تھی۔ روزانہ جب وہ ان راہوں سے پلٹتی تو وہ اسے اجنبی یاد آتا، اسے کئی طرح کے خیال آتے، لیکن وہ انہیں جھٹک دیتی۔ غربت اور قسمت کا ساتھ شر نہیں بنتا۔ ایسی ہی ایک رات جب وہ ہسپتال سے نکل کر بس سٹاپ کی جانب چلی تو ایک سیاہ مہنگی کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور سندیپ اگروال نے اسے آہستگی سے پکارا، نیہا آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ ایک لفظ کہے بنا اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ حیران ضرور تھی کہ سندھو نے اسے یاد رکھا۔ پہلی بار وہ کسی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تم نے تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید میں تجھے بھول گیا ہوں، اب واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، سندھو نے کہا۔ شاید ایسا ہی تھا، یا شاید یقین تھا کہ تم ایک دن پلٹ کر آؤ گے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، نیہا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ اس پر سندھو کافی دیر تک خاموش رہا، پھر پوچھا، نیہا کیا تم اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہو کہ آج تم گھر نہیں آ رہی؟ میں تجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ میں اگر تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو؟ اس نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں سندھو کے بارے میں سنی ہوئی باتیں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، میں صرف درخواست کر سکتا ہوں تم سے، اس لیے میں خود آیا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اسے اپنے بندے بھیج کر بھی اٹھوا سکتا تھا۔ نیہا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں۔ اس نے اپنی بہن کو فون کر کے بتا دیا کہ اس کی دوہری ڈیوٹی کرنا ہوگی اسے، اس لیے وہ کل دوپہر کو آ سکے گی۔ سندھو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک عالی شان گھر تھا، پورچ میں کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سہمی ہوئی اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہاں وہ عورتیں کھڑی تھی۔ سندھو نے نیہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور فریش کر کے لاؤ۔ وہ عورتیں ایسی تھیں جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کی مشاطہ ہوا کرتی تھی۔ وہ اسے ایک بڑے باتھ روم میں لے گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ بدن پر تولیہ لپیٹے وارڈ روم کے سامنے آئی تو ایک مشاطہ نے کہا، یہ سارے ڈریسز آپ کے لیے ہیں، جو بھی آپ پسند کریں وہی ہم نکال دیتی ہیں۔ نیہا نے ہلکے کاسٹی رنگ کا ایک ڈریس پسند کیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو وہ خود کو بھی نہ پہچان پائی۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اس کا حسن اپنا آپ منوا رہا تھا۔ ملگجی روشنی میں بنگلے کے عقبی لان میں سندھو کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی نیہا وہی تھی۔ درمیان میں ایک میز تھی جس پر شراب کی بوتل کے ساتھ لوازمات دھرے ہوئے تھے۔ سندھو نے 2 چھوٹے پیک بنائے اور ایک اس کی طرف بڑھا کر بولا، نیہا تمہارے نام، جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ نیہا نے وہ جام پکڑا اور سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ تمہیں شاید یہ عرصہ بہت لگا، لیکن میرے لیے مشکل وقت تھا۔ 1 ماہ تک تو میں چھپ کر اپنا علاج کرواتا رہا۔ دراصل میں جنہیں اپنا دوست سمجھتا تھا وہی میرے دشمن نکلے۔ سندھو نے گہرے دکھ سے کہا اور اٹھ گیا۔ نیہا بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔
वो दोनों चलते हुए लान के सिरे पर चले गए, जहाँ काफी हद तक अंधेरा था। क्यों? वो क्यों दुश्मन हो गए? उसने पूछा। तुम शायद ये बात न समझ सको, ये एक लंबी कहानी है। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इंसान एक दूसरे का दोस्त या दुश्मन सोच ही की वजह से बनता है। कुछ नजरियात ऐसे होते हैं जिनके साथ या तो मोहब्बत पलती है या फिर मुनाफकत। जिस नजरिए की बुनियाद जिस रवैये पर रखी जाएगी, फितरी तौर पर इंसानी सोच में वही रवैया उन नजरियात के साथ परवान चढ़ेगा। ये कहकर वो फिर खामोश हुआ। चंद लम्हे बाद उसने खुशगवार लहजे में कहा, खैर तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, तुम ये पैक खत्म करो। सिंधु ने कहा और होंठों से लगाकर गिलास खाली कर दिया। ऐसा ही नेहा ने किया। तुम अपने बारे में यही बताओगे ना कि तुम एक मुजरिम हो? नेहा ने कहा। मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं, बहस इससे नहीं, लेकिन तुम एक गरीब नर्स हो, लेकिन मेरी मसीहा हो। मेरा कोई पता नहीं मैं कब और किस वक्त मारा जाऊं, लेकिन मेरी मोहसन, मैं तुम्हें गुर्बत से निकाल जाऊं। उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और मेज के पास जाकर बोतल से 2 पैक बना दिए। फिर दोनों पैक लेकर वापस निगाह पास आ गया। क्या करोगे मेरे लिए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। 2 रास्ते हैं, उनमें से एक तुमने चुनना है, जो तुम चाहो या फिर तुम बता देना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? कौन से 2 रास्ते? उसने पूछा। जितनी दौलत चाहो मुझसे ले लो और अपनी दुनिया जिसके साथ चाहो बना लो। चाहे तो अपनी दुनिया जिस तरह चाहो बना लो, और दूसरा ये कि मेरे साथ रहो। उसने कहा और नेहा की आंखों में देखा। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? उसने पूछा। तुम चाहती तो उस रात मुझे मार सकती थी। उस रात अगर मेरे बहुत सारे दुश्मन बन गए थे तो एक अच्छा इंसान भी मिल गया। तुम्हारी सूरत में मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बल्कि इससे बढ़कर कहूंगा कि अकीदत है तुमसे। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम एक पुरसकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे ये लफ्ज मुझे नहीं भूल रहे कि काहे का डर? पैसा हमारे पास नहीं है जो कुछ छीन लेगा, इज्जत है नहीं जो लूट लेगा, और मेरा ये माहौल ऐसा ही है जिसमें जिंदगी सिसकती है। हम सारी उम्र जिंदगी से लड़ते हैं। सिंधु, जैसे तुम कहो, नेहा ने अचानक कहा और उसके गले लगकर शिद्दत से रोने लगी। वो उसे थपकता रहा। काफी देर बाद उसने नेहा को अलग किया और बोला, अब नहीं रोना, वाह गुरु सब ठीक कर देगा, आओ खाना खाते हैं। फिर सारी रात पड़ी है बातों के लिए। अगले दिन नेहा की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो ख्वाब की सी कैफियत है। अगले चंद दिनों में उसकी जिंदगी ही बदल गई। उसे एक बड़ी रकम देकर अपने वालिदैन को समझा दिया कि अब वो जो नौकरी कर रही है उसमें वक्त का कोई तायुन नहीं। वालिदैन भी समझ गए कि चिड़िया अब घोंसले से उड़ गई है। नेहा को सिंधु के साथ रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया। इस दौरान न जाने वो किन मुल्कों में गई और क्या कुछ देखती रही। सिंधु बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा इंसान था। हालात और खास तौर पर भारत में सिखों के साथ जो हो रहा है उसके रद्दे अमल में सिंधु जैसे कई लोग पैदा हो चुके हैं। बज़ाहिर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन असल में वो जराइम की दुनिया में बहुत आगे तक निकल चुका था। उसकी असल ताकत बब्बर खालसा या सिख लिबरेशन फ्रंट जैसी एक सिख तंजीम थी जो सामने नहीं थी, लेकिन सिखों के इत्तेहाद के लिए पूरी तरह काम कर रही थी। वो एक कारोबारी नेटवर्क था जिसके साए में वो खामोशी के साथ अपना काम करते चले जा रहे थे। मुस्लिम मुल्क और हुकूमती ऐवानों में रसाई के बायस वो बहुत मजबूत और ताकतवर थे।
नेहा के जहन में कभी भी नहीं था कि वो फिल्मी हीरोइन बनेगी। एक दिन ऐसी ही मजाक में बात चली। उनकी एक मुश्तरका फिल्म प्रोड्यूसर दोस्त ने कहा कि नेहा तो फिल्मी हीरोइन लगती है, क्यों न इसे लेकर फिल्म बनाई जाए। उस दिन तय हो गया कि वो भारत की पंजाबी फिल्म में हीरोइन होगी। उस दिन से पहले उसका नाम कुछ और था, नेहा अग्रवाल उसी दिन रखा गया था। नेहा की पहली फिल्म ही हिट हो गई। अगले 2 बरस में वो भारतीय पंजाबी फिल्मों की मकबूल और मसरूफ हीरोइन बन गई। इस दौरान सिंधु के इसके साथ वैसा ही रहा और सिंधु ने अपनी तंजीम के लिए इससे बहुत सारा काम लिया। एक आम लड़की शायद वो कुछ ना कर सकती जो नेहा ने किया। सिंधु और नेहा ने शादी तो नहीं की, लेकिन एक अनजाना अटूट रिश्ता उनमें मौजूद था। सिंधु का जो भी मकसद था वही अब नेहा का था। उनके लिए दौलत कोई मसला नहीं थी। जो जिंदगी के सफर पर वो अपना मकसद लिए चले जा रहे थे। मुख्तलिफ सिख तंजीमों की तरफ से 5 लड़के सिंधु की सरपरस्ती में पंजाब के एक गुरुद्वारे में मजहबी तालीम के साथ साथ तरबियत हासिल कर रहे थे। इनका ताल्लुक बैरूनी मुल्क से था। एक सिख ज्ञानी इनकी तमाम तर देखभाल करता था। सिख पंथ में 5 प्यारों की बड़ी अहमियत है। इसी निस्बत से इन 5 लड़कों को एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था। यहाँ से बुनियादी मजहबी तालीम लेने के बाद उन्हें कनाडा ले जाया जाना था। वहां उन्हें जदीद अलूम की तरबियत दी जानी थी। वो 5 लड़के तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी जान वार देने का हलफ दे चुके थे। चंद दिन बाद उन्होंने कनाडा चले जाना था। हिंदुस्तान की रवानगी के इंतजामात मुकम्मल थे कि अचानक सिंधु समेत वो 5 लड़के गायब हो गए। नेहा और सिंधु के साथियों ने जब उनको तलाश शुरू की तो उन्हें भी कत्ल की धमकियां मिलने लगी। चंद ही दिनों में उनके बहुत सारे साथी मारे गए। खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ा तो नेहा समेत इसके गैंग के सारे लोग जेरे जमीन चले गए। वो लोग कौन थे जिन्होंने सिंधु का सब कुछ तबाह किया? कुछ पता चला? जसपाल ने पूछा तो नेहा बेड पर फैलते हुए बोली, पहले तो बिल्कुल ही पता न चला कि वो कौन लोग थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लोग थे। उनकी मदद सिंह परिवार के मुकामी लोगों ने की। इन लड़कियों की ऐसी क्या तरबियत हो रही थी कि रा वालों ने इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा? जसपाल ने उलझते हुए लहजे में पूछा। उन 5 लड़कों को इसलिए तैयार किया जा रहा था कि भारत में उन सियासतदानों को खत्म करना है जो किसी न किसी सूरत में सिख नस्ल को खत्म करने के दर पे है। इसके अलावा आइंदा आने वाले इलेक्शन में सिखों की तमाम हुर्रियत पसंद तंजीमें अपना उम्मीदवार खड़ा करने वाली हैं। ये तय हो गया था। चूंकि पंजाब में मुसलमान भी हैं, उनसे सियासी सतह पर बात हो रही थी और ये सब हिंदू की सरपरस्ती में हो रहा था। सिंधु की सरपरस्ती में हो रहा था। नेहा ने एक तवील सांस लेकर कहा, वो हमला जिसमें तुम इससे मिली थी वो किसने किया था? इस बारे में कभी तुम्हें पता चला? जसपाल ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। बुनियादी तौर पर वो भी राही का था, लेकिन सिंधु के बंदे तोड़कर वो उससे अपने मकासद हासिल करना चाहते थे। अब तुम क्या चाहती हो? जसपाल ने पूछा। सिंधु और उन 5 लड़कों की वापसी, उसने सुकून से कहा। देखो, जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अब भी तक जिंदा है और पता है कि वो कहाँ है? मुझे उनके जिंदा होने का पूरा यकीन है, क्योंकि राह वालों की किसी फाइल में नहीं। राह वालों ने उन्हें पकड़ा जरूर है, लेकिन अब वो कहाँ है इस बारे में किसी को मालूम नहीं। राह के करता धरता को भी नहीं। उसे पूरे यकीन से कहा तो जसपाल खामोश हो गया। उसका जहन तेजी से सोच रहा था। नेहा, अब मैं समझा हूं कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लगा। तुम्हें फिल्मों में देखा होगा। अब फिल्मी मसरूफियात? जसपाल ने पूछा तो वो बात कथा करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके लिए गुम हो चुकी हूँ। अभी कुछ फिल्में अधूरी हैं। कोई बात नहीं, वो हो जाएंगी।
अगर सिंधु मिल गया तो। वो रहान सा होते हुए बोलती, रिलैक्स नेहा, रब भली करेगा, अब खाना खाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। जसपाल ने कहा तो वो उठ गई। नया पैराग्राफ। मेले वाला मैदान सज गया था। पिछले बरस मेला नहीं हुआ था, तो इस बार पूरे इलाके के लोगों में जोशो खरोश अरूज पर था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे हर बरस होता था। छाका और उसके साथी पूरी तरह इस मेले की निगरानी कर रहे थे। इलाके से बहुत सारे शहज़ोरों ने अपने तौर पर भी जिम्मेदारी ले ली थी कि वो मेले में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होने देंगे। पहले दिन की शाम जब मैं वहां गया तो मेला भरपूर था। मैंने एक चक्कर लगाया और वापस बरगद के दरख्त के पास आकर बैठ गया जहां पर वो दरवेश मिले थे। उस वक्त वो दरख्त के पास नहीं थे, बल्कि आग उसी तरह जल रही थी और पुरानी सी केतली में चाय उबल रही थी। उनकी गडरी और दूसरी चीजें वैसे ही पड़ी हुई थी। मैं एक जानब हो गया। कुछ देर बाद मुझे यूं लगा वो अचानक दरख्त के पीछे से नमूदार हुए हों। वो आकर अपनी गडरी पर बैठते हुए बोले, हाँ भाई नौजवान, तेरा मेला तो बहुत जोरों का लगा है, बड़े लोग आए हैं यहाँ पर। मेरा मेला क्या है बाबा जी, आप खुद ही रौनक लगा कर बैठे हैं, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। मैंने आजिज़ी से कहा, आजिज़ी अच्छी शाह है नौजवान, पर बंदे की अपनी अना भी तो होनी चाहिए। जिस तरह बंदगी में हलूस और रियाकारी होती है, इसी तरह जरा सा इधर उधर हो जाने से बंदगी में अरूज आ जाता है, या फिर बंदगी ही से हारिज हो जाता है। इस तरह बंदगी में आजिज़ी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये बंदे की शान है और तकब्बुर रब ताला की शान। अगर हम इतना ही कह देते हैं कि तू खुदा है, तो मैं इसमें कहा हूं। मैंने अपने आप को तो खारिज कर दिया। अगर ये कहा जाए कि तू मेरा खुदा है, तो इसमें मेरा होना हुआ, और आजिज़ी ये है कि कहा जाए मैं तेरा बंदा हूं। इसमें मैं का वजूद नहीं होता। रब ताला पर यकीन के साथ, उस पर कुल्ली भरोसा ही आजिज़ी है। ये बंदा ही करता है। ये जिंदगी और इस जिंदगी में एक वजूद के साथ है ना। ये जिंदगी और इसमें बंदगी एक वजूद के साथ ही है ना। ये तो मैंने बात समझ ली। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और इस वजूद में क्या कुछ है। ये फितरी सी बात है कि हम इसे अक्ल के साथ देखते हैं कि अक्ल भी तो इसी वजूद में पड़ी है। अक्ल से सोचना भी तो फितरी है। यही वो शय है जो इस रास्ते पर डालती है जहां हम अशिया को देखते हैं और समझते हैं। ये फितरत है कि अक्ल हैरान होती है तो तजस्सुस बढ़ता है। तजस्सुस एक रास्ते पर डालता है और अक्ल उसकी रहनुमाई करती है, यहां तक कि अक्ल एक मंजिल पर आकर ठटक जाती है, क्योंकि अक्ल से जहां हैरतें उभरती हैं वहां अक्ल एक तमाशा भी करती है। वो तमाशे क्या है बाबा जी? मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अक्ल हर वक्त एक नियाबत गढ़ने में मसरूफ रहती है। ये हमारे इर्द गिर्द जो नित नए बुत वजूद में आते हैं, ये अक्ल ही तो गढ़ रही है। अब किसी बुत का ज़ाहरी वजूद है और किसी का ज़ाहरी वजूद नहीं। अक्ल बुतखाना सजाए बैठी है, यहां तक कि कोई इब्राहिम आ जाते हैं और वो बुतखाना टूट जाता है। अब देखो अक्ल की मंजिल कहां पर जाहिर होती है, और इश्क अपनी तमाम तर जुलानियां कहां दिखाता है। यहां तक कि इस हल्का आफाक में जो गर्मा गर्मी है, ये किसके दम से है? इसी इंसानी वजूद से। बाबा जी, जहां तक मैं समझ चुका हूं कि इंसान अपने ही बका से बुतगरी करता है और इसी में ही बुत खाना खत्म हो जाता है। मेरी बात समझते हुए इसे दोहराया, ये नहीं समझोगे कि अक्ल के बुत कौन से हैं? औरत की हाश, लालच, तकब्बुर, हुकूमत, हसद, ये सब अक्ल में जू की तरह नस्ब हो जाएं तो वो वजूद बुतखाना बन जाता है। और बुतखानों में क्या होता है, क्या तुम नहीं जानते हो?
उन्होंने धीमे अंदाज में कहा, तुम्हें सर हिलाकर रह गया, और फिर जवाब देते हुए बोला, वहां तो फिर बुत परस्ती होगी। एक दूसरी के बुत भी होते हैं, एक दूसरी तरह के बुत भी होते हैं, वो नजरियात के हैं। अपने तौर पर नजरिया घड़ लिया और फिर उस पर डट गए। अब इससे क्या होता है और क्या नहीं होता, ये एक अलग सी बहस है। मगर देखो, तमाम फलसफे और नजरियात भी तो इसी सूरत में होने वाले हैं जो इंसानी वजूद में है। ये तो है। मैंने तेजी से कहा, अभी तुमने पूछा कि जिंदगी के ये तमाशे। ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, जिंदगी क्या है? पहले तो ये समझना होगा, जिंदगी को तस्खीर करने के अमल को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी को तस्खीर कैसे किया जाता है बाबा जी? मैंने पूछा तो वो होले से हंस दिए, फिर मेरी तरफ पुरशोर निगाहों से देखकर बोले, अपने आप को तस्खीर कर लो, जिंदगी खुद बहुत तस्खीर हो जाएगी। इतना भी नहीं समझते हो कि तुम खुद जिंदगी के मजहर हो, खुद जिंदगी हो जो रब ताला ने तुम्हें तफवीज कर दी है। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। कितनी देर तक उसी कैफियत में रहे। इस दौरान में उन्होंने मैदान की जानिब देखा। मेला अपने भरपूर अंदाज में सजा हुआ था। वो मैदान जहां सारा साल अंधेरा छाया रहता था, उस रात बरकी कुमकुमों में यूं रोशन था जिसे दिन चढ़ा हो। वो दरवेश आंखें बंद किए पड़े रहे। काफी देर गुजर जाने के बाद भी उन्होंने तवज्जो न की तो मैं उठा और वापसी के लिए चल दिया। मैं घर आया तो अम्मा के साथ सोहनी भी मौजूद थी। मैं हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठा तो अम्मा ने कहा, हवेली में जाकर खाओ, तानी कई बार तुम्हारा पूछ चुकी है। आज न जाने क्यों वो बहुत उदास लग रही है, उसकी दिल जई कर जाकर। मैं चंद लम्हे अम्मा की तरफ देखता रहा, फिर सोहनी की तरफ देखा जिसका आधे से ज्यादा चेहरा आंचल में छुपा हुआ था। वो सर झुकाए बैठी थी। उसने एक लफ्ज नहीं कहा। मैं उठा और बाहर की जानिब चल दिया। तानी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। वो अब अपने सहारे उठ बैठ जाती थी। जब से तानी वापस नूर नगर आई थी, मैंने उसकी भरपूर निगहदाश्त की थी। तानी इसमें बहुत खुश थी कि मैं उसके पास हूं और मेले के इंतजामात को भी नजरअंदाज कर दिया था। तानी एक कमरे में धीमी रोशनी किए पड़ी थी। मैंने जाकर कमरा रोशन कर दिया तो मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। तानी ने तेजी से यूं अपने आंसू पूंछे जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने एक स्याह ट्राउजर पर सफेद कुर्ता पहना हुआ था। मैं उसके पास बेड पर ही बैठ गया तो वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना नहीं किया। मैं ये देखना चाहता था कि वो किस हद तक ठीक है। वो सुकून से बैठ गई तो मैंने धीमे से पूछा, तानी क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे यूं पूछने पर उसने मेरी तरफ हैरानगी से देखा और बोली, तुम्हें किसने कहा है कि मैं रो रही हूं? ये तो ऐसे ही आंखों में चुभन हो रही है। अच्छा, तुम ऐसा करो, उठो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सूट देता हूं, वो पहनो, हम मेले पर घूम कर आएंगे। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, सूट में निकाल कर पहन लेती हूँ, लेकिन मेले पर नहीं जाऊंगी। ये जो फायर लगा है इसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। बेहतियाती की तो उसने कहा तो मैंने इसकी बात कता करते हुए कहा, चलो उठो तो सही, एक लड़की दिखाई दो, फिर खाना खाते हैं और गप्पे लगाते हैं। ये ठीक है। वो ये कहते हुए वो उठ गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। सारा अपने बेटे मुराद के साथ अपने कमरे में थी। मैंने वहां मौजूद मुलाजिम से कहा कि वो हमारा खाना छत पर लगा दे। मैं ड्राइंग रूम में ही था कि तानी ऑफ वाइट कलर के सूट पहने वहां आ गई। आओ ऊपर चलते हैं छत पर, वही खाना खाएंगे। मुझसे शायद सीढ़ियां, उसने कहा ही था कि मैंने उसे अपने बाजू पर उठा लिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैंने देखा उसके होंठों पर एकदम से मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हमायल कर दिए थे। मैं उसे बाजू में भरकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी।
मुलाजिम ने चारपाई निकालकर बिस्तर लगा दिया था। छत पर लाकर मैंने उसे बिस्तर पर बैठा दिया और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मेले की रुदात सुनाने लगा। वो सुनती रही। खाना भी खा लिया। इस दौरान उसका मूड हासा खुशगवार हो गया था। चाय के मग देकर जब मुलाजिम चला गया तो मैंने तानी से पूछा, सच बताना तानी, क्यों अफसरदा थी? तो किसी ने कुछ कहा या किसी को कोई बात बुरी लगी? या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं सारी जिंदगी का प्यार जमा कर लूं तो भी इसके बराबर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जमाल। तो फिर तुम उदास क्यों हो? मैंने पूछा तो वो एकदम से मुस्तरिब हो गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर बालों में उंगलियां फेरकर जोर से आंखें बंद की और फिर एक तवील सांस लेकर बोली, जमाल, मुझे डर लगता है कि तुम लोग मुझसे नफरत ना करो, मुझे खुद से अलग ना समझो प्लीज। यार, ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने उसका जज्बातीपन देखकर पूछा, फिर उसके पास बैठते हुए उसका सर सहलाया। जमाल, मैं मुसलमान नहीं बल्कि मसीही हूं। उसने डरते हुए कहा। तो इस इंकशाफ पर मैं एकदम चौंका तो जरूर, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए पूछा, तो फिर इसमें उदासी की वजह? जमाल, मेरी सारी जिंदगी नफरतों में गुजरी है, कुछ अपनों से, कुछ बेगानों से। रूही में मुझे इज्जत मिली, एहतराम मिला, मुझे एतमाद मिला, अपने होने का एहसास हुआ, लेकिन मोहब्बत नहीं मिली। मैं जब से नूर नजर आई हूँ मैंने इतना प्यार पाया है कि मैं बता नहीं सकती, खास तौर पर अम्मा से। मैं समझती हूँ अम्मा ही एक ऐसी जात है जिसे सबको पिरो कर रख दिया है। आज हम यहाँ हैं तो यकीन जानो अम्मा की वजह से। उसने बेहद जज्बाती लहजे में कहा, ये तुम कैसे कह रही हो? मैंने पूछा। मैं जानती हूँ कि सोनी तुमसे बेहद मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत कि तुम भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हो। उसकी मोहब्बत के सामने तो मुझे अपनी मोहब्बत बहुत कम लगी है। बाप से नफरत अपनी जगह, लेकिन फिर भी वो तुमसे मोहब्बत करती चली जा रही है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं करती। सोहनी, ये जानते हुए बूझते हुए कि तुमसे मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ और इसी वजह से यहाँ हूँ, उसने न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि तुमसे मोहब्बत होने के नाते मुझे प्यार और एहतराम दिया। ऐसा क्यों है? सिर्फ अम्मा की वजह से। अम्मा की वजह से? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा तो वो बोली, सोहनी तवाइफ की बेटी थी, उसने इस माहौल में आंख खोली, बचपन से जवानी तक तरबियत हासिल की, मगर कहाँ गई वो तरबियत, वो माहौल? अम्मा के पास आई, उसके पास रही और आज वो क्या है शायद तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। मुझे कभी कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं मसीही हूँ, लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि प्रस्तिश के लिए कोई और ताकत है। मतलब कैसे? तुम खुलकर बताओ। मुझे खुद तजस्सुस होने लगा था। मुझे एक नई सोहनी से मुतारिफ करवा रही थी। अम्मा तो इबादत करती हैं, लेकिन सोहनी वो दोहरी इबादत कर रही है। उसने कहा, दोहरी इबादत? मसलन क्या मतलब? मसलन अम्मा नमाज पढ़ती है, सोहनी भी पढ़ती है। जितना अम्मा जागती है इतना वो भी जागती है, लेकिन सोहनी अम्मा की खिदमत करती है। वुजू से लेकर जायनमाज बिछा देने तक के छोटे छोटे काम। सोहनी के अंदर की तवाइफ न जाने कब की मर चुकी हैं। वहां तो एक इबादत गुजार बंदी मौजूद है। उसने बड़े जज्बाती लहजे में बताया। तो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मैंने तानी की तरफ देखा। तानी, मेरी माँ है ही ऐसी, सच पूछो तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी अम्मा क्या है। बस मुझे तो इतना मालूम है कि वो मेरी माँ है और मेरी सारी ताकत उसकी दुआ है। खैर, तुम्हारे बारे में कभी तजस्सुस की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओगी? क्यों नहीं, मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन नफरत, उसे कहना चाहा तो मेरे हाथ के इशारे से उसे रोक दिया, तो वो कहती चली गई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।